اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله الكرام عند وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعدن الجود والكرم والإكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. وقت انتہائی مختصر ہے اور ہمیشہ ہی اتنا ہی وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے جو کچھ عرض کیا تھا اس کا پورا مکمل گفتگو رہ گئی تھی اور آج بھی وقت کم ہے میں اسی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آج بھی نہ تو مکمل رہ جائے تو دس وقت نہ تو اپنا ہوگا. یہ جگہ کم ہوتا ہے نماز کا وقت کو نہیں چاہا جا سکتا. وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه السلام اجمعين وبارك وسلم ابدا. پروردگار عالم جل جلالہ رحمن العالمین شاید کریمہ نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سب سے زیادہ بزرگ سب سے زیادہ بڑا اور اچھا آدمی وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور متقی اور پرہیزگار یا تقویٰ کا لفظ سن کے لوگ چونک جاتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز اور بڑی اہم چیز ہے. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو تصویر یہ 24 گھنٹہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں. یہ بات یقیناً تقویٰ انتہائی اہم چیز ہے بلکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ساری نیکیوں اور ساری اچھائیوں کی بنیاد ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ التقویٰ ملاذ الحسنات. تقویٰ جو ہے یہ نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے. تو اگر جڑ اور بنیاد ہی کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ نہ تو کوئی درخت صحیح طور پر اپنی عمر کو جا سکتا ہے نہ اس میں پھل پھول لگ سکتے ہیں. اور اگر عمارت کی بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہو جائے گی. گر جائے گی. اس کی بات ہے. آج اس سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے میں تقویٰ کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں تقویٰ ہے کیا. مگر وہ اتفاق اگر سب ایسی جگہ ختم ہو گئی تو اس کی نوبت ہی نہیں ہے. اب آج کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے تقویٰ کسے کہتے ہیں. یہ اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے. ایک حالت ہوتی ہے. اللہ کے رسول سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں انہیں مخاطب کیا اور قریب بلا کے فرمایا تقویٰ کا مطلب سمجھا اور ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا. اشارہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا. اے حذیفہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دل کی صفائی اور دل کی ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے. دل میں اگر صداقت ہے, دل میں اگر سچائی ہے, دل میں اگر ایمان کی نورانیت ہے تو اسی کا نام ہے تقویٰ. اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ اسے کہتے ہیں اس قوت کا نام ہے کہ جب انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے برے اور بھلے کی تمیز خود بخود ہو جاتی ہے. پھر اسے کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
کیا چیز بری ہے کیا بھلی ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، ایک متقی آدمی کا دل پکار دیا کرتا ہے. کوئی بھی بری چیز ہے متقی آدمی اس سے پرہیز کرتا ہے، اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے. تو برائیوں سے نفرت اگر پیدا ہو جائے اور نیکیوں سے انسیت و محبت پیدا ہو جائے تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تقویٰ کی روشنی آ گئی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو اور اپنے بندوں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ تم متقیوں کے ساتھ رہا کرو تاکہ ان کے ساتھ رہ کر اپنے دل کی جلا دل کی پاکی اور دل کی طہارت حاصل کر سکو. حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت مؤثر ہوتی. کسی کی بھی آپ صحبت کریں، ساتھ کسی کا کریں آپ تو ذرا دیکھ لیں. برے آدمی کی صحبت میں آدمی جب رہتا ہے تو برا ہو جاتا ہے، بھلے کی صحبت کرے گا تو بھلا ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں بڑا طویل قصہ ہے اصحاب کہف کا قرآن مقدس، لیکن میں آپ کو صرف اشارتاً بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف چند مظلوم اللہ کے نیک بندے ہیں، وقت کے ستائے ہوئے، وقت کے ٹھکرائے ہوئے، سلطنت کی نگاہوں میں مبغوض تھے. ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرتے تھے، شرک نہیں کر رہے تھے، کفر نہیں کر رہے تھے، گناہ نہیں کر رہے تھے. ان کا جرم یہ تھا. اس بنا پر ان پر زمین جب تنگ ہو گئی اور انہوں نے اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت اختیار کی تو قرآن مقدس میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا تھا وہ بھی چلایا. اصحاب کہف کا کتا مشہور ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلایا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہ گیا. حتیٰ کہ آج بھی ان کے ساتھ ہی جہاں وہ لوگ مدفون ہیں وہی کتا بھی رہتا. حضرت سعدی علیہ الرحمٰن نے بڑے مزے کی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا ہے ایک جگہ کے سگے اصحاب کہف، اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ نیکوں کا اس کو تھوڑے دن صاف کر دیا، پائے نیکا کے لیے صاف کر دیا. تو جب نیکوں کا اس سے صاف کیا ہے تو وہ آدمی ہو گیا. آدمی ہو گیا کیا مطلب؟ آدمی سمجھتے کیسے ہاتھ کرتا آدمی ہوگا نہیں. تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے میدان میں اصحاب کہف کا کتا جو ہے بنام باور کی شکل میں انسان بنا کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ نیکوں کا اس نے ساتھ کیا تھا. تو میرے بھائی اگر کتا اچھوں کا ساتھ کر کے اچھا بن سکتا ہے تو ہم اور آپ کو انسان ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. جب سچوں کے ساتھ انسان ہوتا ہے تو اس پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے. آج ہماری حالت انتہائی خراب اور مستقبل جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ساتھ چھوڑ دیا. ہم نے اللہ والوں سے جو عقیدت تھی وہ ختم کر دی. میں بتاؤں کہ جب کسی بزرگ کا ساتھ آدمی پکڑ لیتا ہے یا کوئی قوم پکڑ لیتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. عالم یہ ہے کہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محمود غزنوی نے پوچھا کہ حضور بایزید بستانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ بزرگ ہیں جو کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بایزید کے بارے میں کیا تم پوچھتے ہو؟
बायजीद बुस्तामी की शख्सियत वो है कि जो उन्हें देखता था मुसलमान हो जाता था, जिसकी नजर उन पर पड़ी वो मुसलमान हो गया। तो महमूद गजनवी बड़ा घबराया, उसने कहा हुजूर की बात अजीब की मालूम हो रही, बात पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों? मैं हुजूर ये बताइए कि तुमको देखने वाला तो मुसलमान हो जाता है, अबू जहल अबू लहब जैसे लोगों ने रसूलुल्लाह को देखा तो क्यों नहीं मुसलमान हुए? आपने ये क्या बात है? आपने फरमाया तुमने सच सवाल किया, सही बात, लेकिन सुनो, असल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल अबू लहब ने देखा ही नहीं था। उनको देखने वाले तो फारूक आजम थे, सिद्दीक़ अकबर थे, जिन्होंने देखा और कलमा पढ़ लिया। लेकिन अबू जहल और अबू लहब ने सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा, और ये कुरान भी इसी की शहादत दे रहा है। वतराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून। हे महबूब, आप ये देख रहे हैं कि ये कुफ्फार आपको देखते हैं, नहीं, ये आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं। कि अगर समझ देते तो आपकी मुखालफत नहीं करते, वो कलमा पढ़ते मुसलमान हो जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बायजीद बुस्तामी की ये शख्सियत है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। एक मरतबा किसी ने कह दिया उनको, हुजूर आपकी बुजुर्गी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, सब लोग आपको वली अल्लाह मानते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आप हैं, बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगार आप हैं, लेकिन एक बात भी संगाती कि जिस कस्बे में आप ठहरे हुए हैं उसी कस्बे में बुराइयां भी हो रही है, उसी जो कस्बे में तवायफों ने अपने अड्डे जमा रखे हैं, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। ये बात देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह के नेक बंदे जब किसी बात पर आ जाते हैं ना, तो जो चाहते हैं वो हो जाता है, उत्तर लेते हैं। अच्छा, ये बात उठे, शाम का वक्त है, खड़ा हूं, पहले ऐसा है मुबारक हाथ में लिया, चले एक तवायफ के कोठे पर पहुंच ले और अपना ऐसा और खड़ा हूं नीचे दरवाजे पर छोड़ दिया, आप ऊपर चले। अब जितने लोग आते हैं वहां आने वाले जो हमेशा से आते थे, वो जब आते देखते तो आज ऐसा यहाँ रखा हुआ है कि खड़ा हूं यहाँ पड़ी हुई है। रात भर वहां तो कोई नहीं गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊपर पहुंचे और आपने उसकी जो रकम फीस की होती थी वो अदा कर। आपने फरमाया कि देखो रकम तो मैंने दे दी, अब तो मैं जो कहूँगा वो तुम करो, चलो जाओ मुश्किल करो, वजू करो, उसको तौबा कराया और खड़ा कर मुसल्ले। आप एक दूसरी तरफ मुसल्ले पर खड़े, जैसे ही वो मुसल्ले पर नीयत बांध के खड़ी हुई है तो हजरत बायजीद बुस्तामी सजदे में गए और अपने परवरदिगार आलम से अर्ज़ की, मेरे मौला, मैंने अपना काम कर दिया है, इस बुरी आदत वाली औरत को तेरी बारगाह में ला करके मैंने खड़ा कर दिया है, यहाँ तक मेरा काम था, आगे तेरा काम है। लेकिन याद रहे मेरे मालिक कि मेरे खड़ाऊ और मेरे आशा को दुनिया ने इसके दरवाजे पर देखा। अगर अब भी ये न समझी तो यजीद बायजीद बुस्तामी की बेइज्जती होगी और इसकी इज्जत हाथ में मिल जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ दुआ नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने इज्जत और वक़ार का वास्ता भी दे रहे हैं कि मेरे मालिक, अगर ये औरत न समझी, अगर ये अपनी आदतों से बाज न आई तो कल दुनिया मुझे बदनाम करेगी, इसलिए कि इसके दरवाजे पर मेरी जूती देखी गई है और मेरा आशा देखा गया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ?
जिस वक्त वो औरत सजदे से सर उठाती है तो उसका दिल आईने की तरीके से साफ हो और वो एक वली कामिला होती है। और न सिर्फ यही होता है बल्कि कुदरत की जानिब से खुदा जाने गैब से कौन सी कुव्वत थी जिन्होंने पूरे कस्बे में ये ऐलान कर दिया और सबको पता चल गया कि वो जो कवायद थी वो अल्लाह की वलिया हो गई है। तौबा कर ये बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये बताया है कि ये मुसलमानों सच्चों के साथ रहा करो, इसका मतलब ये है कि सच्चे लोगों के कहने पर हम अमल करें, अपने किरदार को सुधारें, अपने अमाल को सुधारें। जिंदगी 4 दिन की है और ये सेहत जो है ना, जिस सेहत पर हम और आप उतरा रहे हैं, ये भी इसका भी कोई भरोसा नहीं है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बड़ा मशहूर मक़ूला है। आप इरशाद फरमाते हैं कि हासिबू अनफुसकुम, अपने नफ्सों का मुहासबा करो, क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। देखो ये तो हमारा और आपका ईमान है कि क़यामत आने वाली है, ये तो सब जानते हैं। हमें अल्लाह के सामने पहुंचना है, अपने आमाल का हिसाब तो देना है ना, तो हिसाब देने से पहले अपने घर ही में क्यों पहले हिसाब दुरुस्त कर लिया जाए। बात समझ में आ रही, कुछ क्या कहा जा रहा है कि देखिए अगर किसी को हिसाब देना हो ना, तो होशियार आदमी वो होता है कि इम्तिहान में हिसाब देने से पहले या किसी को हिसाब देने से पहले खुद ही बैठ करके हिसाब कर लेता है, ताकि कमी बेशी यही कर दूं, वहां जाके बेइज्जती न हो कि तुमने हिसाब में घपला किया, होता है। तो जब ये चीज मुतय्यन है कि हमें हिसाब देना ही देना है, तो क्यों न उससे पहले अपना हिसाब किताब करके मुरतब कर दे, ताकि कल क़यामत के मैदान में कोई परेशानी न हो। और इसीलिए तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग मुत्तकी है और अपना हिसाब व किताब दुरुस्त रखते हैं, कल क़यामत के मैदान में उनके हिसाब व किताब में आसानी भी होगी। तो आसानी क्यों होगी, इसलिए कि सारा हिसाब किताब तो पहले से कर तो मुरतब किए हुए के हिसाब पेश कर दिया, बात खत्म होगी। अब ऐसा तो नहीं कि वही खड़े होकर के हिसाब किताब कराइए। परवरदिगार आलम जल्ले जलालहु अहमद वालहु इरशाद फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है, सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तक़ियों पर होता है। और यही चीज हमारे अंदर से खत्म हुई। और अब हम इसको तलाश कहाँ करते हैं, अब लोग तलाश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कमाओ तो सुकून मिल जाएगा, है ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाओ, इधर उधर घूमो फिरो तो वो तबीयत पहले की और तबीयत को सुकून मिलेगा। कोई रात ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में है कि इससे हमारी जिंदगी बच जाएगी, सुकून मिल जाएगा। कोई ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाने की फिक्र में है, कोई ज्यादा कारोबार बढ़ाने की फिक्र में है, कोई कुछ करता है, लेकिन वही काम लोग नहीं करते जिसको करने से उन्हें सुकून मिल सकता। मैं बताऊं, कभी कभी अक्सर मैं बताता हूँ क्या हिमाकत लोग करते हैं आजकल। ये बताओ कि जो चीज जहां गुम होगी वहीं न मिलेगी। सोचिए, गौर कीजिए, जहां कोई चीज गिरेगी या तो नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो वहीं मिलेगी। वो कोई आदमी था ना, उसकी बहुत अच्छी और कीमती अंगूठी गिरी, गिरे जड़े हुए जिनकी अंगूठी गिरी, वो तलाश कर रहा है, बैठा हुआ तलाश कर रहा है, वो पानी जल रहा है, खंभे पे तलाश कर रहा,
तो लोग आते जाते देख रहे हैं, एक आदमी आया, उसने कहा बड़ी देर थी आदमी यहाँ बैठा कुछ सुरेज रहा है घास में, तो वो भी मिल जाकर क्या कर रहा है, तो कभी वो अंगूठी मेरी गायब हो गई, तलाश कर रहा हूँ। तो उसने मुझे तलाश कर रहा हूँ, जितना सा मदद कर देते हैं इसकी, तो वो भी जब तलाश कर रहा है। तीसरा आया, वो भी उसी में मिल गया, चौथा आया, वो भी मिल गया, सब उसके पीछे उसकी अंगूठी तलाश कर रहे हैं। वो जनाब अंगूठी का नाम रहता है। आज जाकिर एक आदमी खड़ा होकर उसने पूछा गया, एक बात बता, आखिर गिरी कहाँ है वो अंगूठी? जितने मैदान में हम हर जगह तो नहीं तलाश करेंगे ना, जहाँ गिरी है वो बताओ, जगह बताओ कहाँ गिरी तुम्हारी अंगूठी? वो अंगूठी तो असल में मैं काम कर रहा था, घर में गिरी, अंगूठी घर में गिरी। घर से बंद है, खुदा से किया क्या कर रहा है? तो जब बात ये है कि घर में है अंधेरा, बत्ती नहीं है, चिराग नहीं है, तो अंधेरे में तो नहीं वो चीज नजर आएगी। यहां की रोशनी तो यहां तलाश कर रहा हूं, अब आप इसे क्या कहें? देखिए ना, अंगूठी गिरी है घर में, लेकिन घर में है अंधेरा, रोशनी यहां मैदान में है, तो अंगूठी मैदान में तलाश कर रहा, कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, यही सूरत हाल हमारी है। हमारे दिल से हमारा सुकून गया है, हमारे कल्ब से हमारे ईमान की रोशनी मस्जिद पड़ी है। चीज जो गई है वो हमारे दिल से गई है, दिल ही में तलाश करो आप, दिल में तलाश करो सुकून। अगर तुम्हें सुकून की तलाश है तो दिल के अंदर तलाश करो, दिल को दुरुस्त करो। अगर दिल को नहीं तुम दुरुस्त करोगे तो क़यामत तक सुकून नहीं हासिल कर सकोगे। जो चीज जहां से जाती है, जहां गिरती है, वही वो चीज मिलती है। ये अगर रोशनी नहीं है तो रोशनी पैदा करो ना भाई। घर में अंधेरा है, ध्यान कराओ। तुम्हारा दिल अगर अंधेरा है तो ईमान की रोशनी पैदा करो, सदाकत की रोशनी पैदा करो, सच्चाई की रोशनी पैदा करो, इबादत और तकवा हासिल करो, तुम्हारा दिल बराबर हो जाएगा। ईमान की रोशनी से तुम उसमें ताजिंदगी पैदा होगी और फिर उसके बाद तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा। एक बात याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला कादिर अल इतलाफ है, वो इस बात पर कादिर है कि एक आदमी फाका कश है, गरीब है, मिस्कीन है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो मसरूर और मुतमईन है। और एक आदमी है जिसके पास दुनिया जहान की दौलतें हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं बैठता। क्यों? उसकी वजह सिर्फ यही है कि सुकून का ताल्लुक, इत्मीनान का ताल्लुक, राहत और आराम का ताल्लुक दिल से होता है, कल्ब से होता है। दिल मुतमईन है तो समझ लीजिए कि सब कुछ मुतमईन है। दिल अगर परेशान है तो सारी दुनिया परेशान। इसी को हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया है, इन्न फिल जसद मुद्ग़तुन, जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, मुद्गा, एक गोश्त का टुकड़ा है। वो अगर अच्छा रहे, इन सलोहल जसद कुल्लु, अगर वो सही सालिम है तो पूरा बदन सलामत है, पूरा बदन ठीक है। इन फसदत, और अगर कहीं वो खराब हो गया तो फसदल जसद कुल्लु, तो सारा जिस्म खराब हो गया। अला वहियल क़ल्ब, गौर से सुनो तो उसका नाम क़ल्ब है। इसलिए मेरे दोस्तों, दिल की दुनिया को दुरुस्त करो। और दिल की दुनिया कहाँ दुरुस्त होती है? ये अल्लाह वालों के, अल्लाह के नेक बंदों का दामन हाथों में लो, अल्लाह के नेक बंदों को का साथ इख्तियार करो। वो जो कहते हैं उस पर अमल करो, उनकी तालीमात पर अमल करो, उनकी हिदायत पर अमल करो। उसके बाद तुम्हारे दिल में ताजिंदगी पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी और दिल को सुकून महसूस। देखो, ये दौलत वौलत से कुछ नहीं होता। अगर दौलत ही बुनियाद होती कामयाबी की तो फिरौन से ज्यादा कोई कामयाब नहीं होता।
आवाज से ज्यादा कामयाब नहीं होता, शब्दात से ज्यादा कोई कामयाब नहीं होता। ये वो मिसाली शख्सियतें हैं दौलत और सरवत के एतबार से, जिसे कुरान ने भी बताया है। लेकिन इनको बर्बाद भी किया था दौलत ही ने। याद रखो, हर ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए इंसान की ना, तो उसमें रौनक पैदा हो जाती है। हर ख्वाहिश अगर इंसान की पैदा हो जाए तो रौनक पैदा होती है। लिहाजा एक मोमिन का ये ईमान होता है कि अगर कोई आरज़ू करे और कभी पूरी न हो सके तो उस पर भी उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखो, बड़े यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि फिरौन खुदाई का दावा कभी नहीं करता अगर उसकी आरज़ू और ख्वाहिशें पूरी न हो। उस दिन उसकी ख्वाहिश करता था, जो भी इरादा करता था, इतने वसाइल थे कि वो सब कुछ कर दिया करता था और उसमें इतनी रौनक पैदा हुई तो खुदाई का दावा कर देता था। अना रब्बुकुम आला का नारा लगाने लगा। ये क्यों? इसलिए कि उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो। तो अगर कभी कोई ख्वाहिश आपकी पूरी न हो तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको सीधे रास्ते पर रखा है। दिल में रौनक नहीं पैदा होने दी है। वरना मैंने इससे पहले भी शायद बताया था आप लोगों को कि मेरे भाई, उस इबादत गुजार बंदे से जो इबादत के जोर से नफरत पैदा जिसके अंदर हो जाए, उस आबिद से वो गुनहगार 1000 दर्जा बेहतर होता है कि जो गुनाह करके शर्मिंदा होता है और अपने रब की बारगाह में मग़फ़िरत का तलबगार होता है। ज़रूर बहुत बुरी चीज़ है। कभी इबादत पर, रियाजत पर और अपनी सच्चाई पर, अपने तक़वा और तहारत पर, कभी उसकी नेक चलनी पर आदमी को मग़रूर नहीं होना चाहिए। जिस दिन गुरूर पैदा होगा सारी नेकियां हाथ में दी जाएगी। देखा नहीं, इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद था, सिर्फ गुरूर में उससे ज्यादा कोई इबादत गुजार नहीं हो सके। हदीस शरीफ में आया है कि पुष्कोत्तर में एक बालिश्त भी जमीन ऐसी कोई नहीं है कि जहां इब्लीस ने सजदा न किया। इतना बड़ा इबादत गुजार बंदा, फरिश्तों का उस्ताद जिसे कहा गया है और फरिश्तों को तालीम देता था, लेकिन एक जरा सी नफरत पैदा हो आदम से अच्छा हो। बस इसलिए तो कहा था ना, और तुम कहा यही कहा था, मेरे मालिक मैं इन्हें सजदा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं इनसे अच्छा हूं। ये अपने को दूसरों से अच्छा कहना ये इब्लीसी फितरत है। हमेशा याद रखना चाहिए, अपने आप को किसी से बदतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मखलूक को अपने से बदतर समझना चाहिए। आप अपने से सबको अच्छा समझिए, सब आपको अच्छा समझिए। आप क्यों अपने आप को अच्छा समझते हैं? आपको अपने सीधी बात है, आप या मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूं, बहुत अच्छा समझने लगूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो उस वक्त पड़ेगा जब लोग मुझे अच्छा समझेंगे। तो अपने अच्छा समझने से क्या होता है, ये फैसला लोगों की समझ में नहीं आता। अरे भैया, और लोग अच्छा उस वक्त समझेंगे जब लोगों के साथ अच्छे अखलाक से आप पेश आएंगे, अच्छे किरदार से पेश आएंगे, तवाज़ो से पेश आएंगे, इंतसारी से पेश आएंगे। तकब्बुर और गुरूर से अगर पेश आएंगे तो दुनिया आपको ठोकर मार देगी। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व अलैहि किराम अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। बात फिर कहीं की कहीं चली गई। चलो देखेंगे अगर कभी वक्त मिला तो। अब आज सिर्फ इतना आप याद रखें कि हमें दिल की बुनियादों को, हम मस्जिद में हो या घर में हो, मैदान में हो या दुकान में हो, सच्चाई को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सच्चाई यूं तो बहुत सी है, लेकिन 3 बुनियादी सच्चाइयां हैं कि जिनमें सारी सच्चाइयां आ जाती हैं। एक तो आदमी को दिल का सच्चा होना चाहिए, दूसरे नीयत का सच्चा होना चाहिए और तीसरे अमल का सच्चा होना चाहिए। अमल का सच्चा होना चाहिए, नीयत का सच्चा होना चाहिए
اور دل کا سچا ہونا چاہیے. یہ 3 سچائیاں آپ اپنا لیجیے. پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.